press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Welcome to the first chapter of 10th Maharashtra State Board Political Science. First chapter is Working of Constitution. So in this chapter we will study how our constitution is working and what are the different features of our constitution, what are the different laws that are made that are given in our constitution, how constitution ensures social justice how we are having democracy in our country, or what is the role of judiciary. So we will study all these things. So let us see what we have studied earlier. So in the textbooks of political science till now, we have helped us to take an overview of local government. So local government means पंचायत, municipalities, that is local government. Local level पे जो government होता है, पंचायत, municipality, that is local government. The values and philosophy of Indian constitution. So we have studied the values of our constitution, like constitution believes in equality. All people are treated equally in our country. There is freedom given to the citizens. Citizens can freely move in the country. People from Rajasthan can come and live in Mumbai. People from Mumbai can go and live in Delhi. So we are having freedom. We are having freedom of speech. We can speak against the government. So these are the various values that are given to the constitution. We are having secularism, as all the religions are treated equally in our country. So these are the different values in our constitution. So we have last year we have studied about international relations. So what are India's international relations? We have studied about United Nations. We have studied about different organs of United Nations. So these things we have studied. So Indian Constitution has declared its objective to establish secular democratic republic. So if you see the first few pages of your textbook, there is a preamble. So in preamble also it is given that India is a secular or democratic republic. Secular means government is treating all the religions as equal. गवर्नमेंट के सामने सभी रिलीजन एक जैसे होते हैं. गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रीफर नहीं करता है, सभी को इक्वल रेस्पेक्ट देता है. सो दैट इज सेकुलर. देन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी. देयर इज डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल. देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द पीपल एंड ऑल द सिटीजन्स आर हैविंग इक्वल राइट्स. सो दैट इज डेमोक्रेसी. एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब जिस कंट्री के हेड ये इलेक्टेड होते हैं, दैट कंट्री इज कॉल्ड एज रिपब्लिक. सो इन केस ऑफ इंडिया, head of the state or head of the Indian country is president. President is elected by the people. President elected होता है. तो जिस कंट्री का प्रेसिडेंट या हेड इलेक्टेड होता है वो कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं. इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हेड होते हैं ब्रिटेन की हेड है क्वीन. क्वीन इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. क्वीन हेरिडेटरी पोजिशन है. क्वीन के बाद उनके बेटे या बेटी किंग या क्वीन बनेगी. सो दैट इज नॉट अ elected position. So Britain cannot be called a democracy or Britain cannot be called a republic. Britain is a democracy. Britain में भी प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, बट रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ के जो हेड है दैट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इंडिया इज डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक. Also it has made extremely important provisions to ensure that citizens get justice and their freedom is protected. So we have given fundamental rights to the citizen, like right to equality. सिटीजन्स आर गेटिंग जस्टिस. सभी को न्याय मिलता है और सभी का फ्रीडम हम प्रोटेक्ट करते हैं. अगर किसी ने क्राइम किया तो ही उसे हम जेल में भेजते. किसी को कुछ किया नहीं है तो हम जेल में नहीं भेज देते, या कोई उसका फ्रीडम पे रोक नहीं लगा लेते. सो ऑल द स्टेप्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज द मीन्स थ्रू विच प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मीन्स justice in the society. Everybody in the society should get equal share in the power. जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं सभी को हम इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए. दैट इज सोशल जस्टिस. एंड इक्वालिटी विल बी एस्टैब्लिश. तो इक्वालिटी शुड बी एस्टैब्लिश इन द कंट्री. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. सो दैट सिटीजन्स आर गेटिंग दिस. सो वी आर मेकिंग अ प्रोग्रेसिव डेवलप्ड सोसाइटी. सभी लोगों को अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो ही हमारा सोसाइटी प्रोग्रेसिव होगा, डेवलप होगा. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको इक्वल पावर दिया है, इक्वल राइट्स दिया है, सो दैट आवर कंट्री और आवर सोसाइटी इज बिकमिंग प्रोग्रेसिव. सी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. सो 26 जनवरी 1950 जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, फोर्स में हुआ, अडॉप्ट कर दिया हमने, इनैक्ट किया.
And since then, the government has been working in accordance with the principles of constitution. So from that day, government is working according to the constitution. So government, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, रिपब्लिक है और डेमोक्रेटिक है. तो गवर्नमेंट को भी उस हिसाब से काम करना पड़ता है. जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सेक्युलर पॉलिसीज होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक पॉलिसी होना चाहिए, या फिर वो रिपब्लिक कंट्री के जो पॉलिसीज होते हैं वैसे होना चाहिए. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. In this chapter, we will take a brief overview of wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in the political process, and steps that have been taken to establish social justice. So, what are the different steps that the government has taken to ensure justice to everybody? Government ने क्या कदम उठाए कि सभी को equal power मिले, सभी को न्याय मिले सोसाइटी में. ऐसे नहीं कि कोई ग्रुप को हम लोग कुछ पावर नहीं दे रहे, एक ग्रुप को ज़्यादा पावर मिल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड गेट इक्वल पावर, एवरीबडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. ये सोसाइटी में सभी को मिलना चाहिए. एंड देर इज वेरियस वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर हैविंग, लाइक वी आर हैविंग लेजिस्लेचर, वी आर हैविंग जुडिशरी, वी आर हैविंग एग्जीक्यूटिव, और अलग अलग लॉज है हमारे कंट्री में जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन वी विल टेक व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव मेड इन द इंडियन कंट्री. सो इन दिस चैप्टर वी विल रिव्यू primarily focus on three areas. First is democracy, second is social justice, and third is judicial system. So we will study this chapter in three parts. In first part we will study about democracy, second part we will study about social justice, and third part we will study about judicial system. So let us begin with the democracy first. See, political maturity मतलब क्या होता है? लोग मैच्योर होना चाहिए. लोग मैच्योर कभी हो गए जब भी लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा और लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे. गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे तो गवर्नमेंट भी लोगों को आंसरेबल है, गवर्नमेंट भी लोगों को आंसर देना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट भी अच्छा काम करेगा. सी, जब भी कंट्री में इंडिपेंडेंस होता है तो सभी को इक्वल राइट्स नहीं होता है. जब भी इंडिपेंडेंस मिलता है तो सभी को इक्वल राइट्स नहीं मिलता है, या सभी को इक्वल पावर में आने का इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. जैसे जैसे कंट्री एडवांस करते जाता है वैसा सोसाइटी भी मैच्योर होता है. सोसाइटी मैच्योर होने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के लॉज भी ऐसे बनते हैं कि सभी को हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं. So let us see what is the political maturity. Democracy does not merely imply on representative structure. See, we are having representative democracy. हम डायरेक्टली रूल नहीं करते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजते हैं या उनको मिनिस्टर्स बनाते हैं. सो वी आर वर्किंग विद आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे काम करते हैं वहां जाके. सो ओनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ. ये जो लास्ट लेवल तक, लास्ट आदमी तक गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है वो पहुंचना चाहिए. लास्ट आदमी को भी पावर होना चाहिए अपने बारे में सोचने के लिए. सो दैट इज पॉलिटिकल मैच्योरिटी. द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस. सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव जब भी जाते हैं ये अपने लिए काम करते हैं और ये हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं. सो वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वंस दिस इज डन, democracy becomes an integral part of the political life of the society. See, democracy is the integral part. ये हमारे जिंदगी से हट नहीं सकता है. It is basic part of our system. See, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए काम करते हैं. हमारे कंट्री को अगर चलना है तो हमें रिप्रेजेंटेटिव चूज करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्शंस करना पड़ेगा. इलेक्शंस होगा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हमारे लिए काम करेंगे. अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो ये ऐसा गवर्नमेंट चलेगा नहीं. सो इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. अकॉर्डिंगली इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. सो इंडिया के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो वी कैन नॉट गो एंड डायरेक्टली रूल इन अवर कंट्री. हमारे सब लोग, इंडिया के 125 करोड़ प्लस लोग एक जगह जाके हमारे लिए पॉलिसीज नहीं बना सकते. इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, सो दैट रिप्रेजेंटेटिव्स विल गो एंड दे विल वर्क फॉर अस, दे विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ अस. सो पीपल आर गेटिंग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे आपकी क्लास में जो मॉनिटर होता है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. सो ही इज रिप्रेजेंटिंग अस. वो हमारे बिहाफ पे वहां जाके मॉनिटर बनाए या क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाए. Same is with the member of parliament or member of legislative assemblies. So state assemblies and local government. Local government में जो पंचायत में सरपंच होते हैं या म्यूनसिपालिटीज में जो नगर सेवक होते हैं या फिर जो कॉर्पोरेटर होते हैं, they are representing some area.
हमारे गांव का जो सरपंच है ये सभी गांव के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, सभी गांव के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाता है. सेम इज विद लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा. सो महाराष्ट्र में विधानसभा भी है, विधान परिषद है, बोथ ऑफ देम आर देयर. सो दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर. Holding free and fair elections at regular interval is important indicator of India's successful democracy. So we are having fair elections and free elections. Free election means people are having freedom to choose anybody. हमने people को choice दिया है. They can choose any leader according to their choice. So वहाँ freedom है लोगों को. और fair election. Fair election means कोई घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जीतने का. सो दैट इज फेयर इलेक्शंस. सो वी आर हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अमेरिका में भी कुछ टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, बट इन आवर कंट्री वी आर हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो एट रेगुलर इंटरवल्स आफ्टर 5 years वी आर हैविंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. हमने हर 5 साल बाद जब इलेक्शंस लेते हैं तो लोग हमें हमारे लीडर्स के लिए वोट करते हैं. सो ये प्रूफ है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होता है, लोकसभा का इलेक्शंस होता है, तो वर्ल्ड में इतने लोग नहीं है जो एक कंट्री में इतने लोग वोटर है जितने इंडिया में है. इंडिया इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. सो इट इज इंडिकेशन दैट वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और वी आर हैविंग सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. The increasing participation of people in political process and political competition shows that India's democracy has become successful to great extent. तो हमारे लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स और पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन टू द लीडर्स. जितना लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना डेमोक्रेसी ज़्यादा डेवलप होते जाएगा. सो एज मोर एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. सो अगर लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा गवर्नमेंट के काम में पार्ट लेंगे, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज रूल में आना चाहता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनना चाहता है, दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑल्सो स्टार्ट कंपीटिंग. दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होगा. जो काम पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करेगा उसे हम चूज करेंगे. सो ये भी अच्छी बात है. पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कंपटीशन होगा सो दैट इज गुड फॉर द कंट्री. So next we will see right to vote. See, in India we are having right to vote. People, adult citizen above 18 years of age is getting right to vote. So even if he is male or female or he is belonging to any caste, any religion, he is getting right to vote. Or he is rich or poor, he is getting right to vote. So India में 18 years के above अगर हम होंगे तो हमें right to vote मिलेगा, वोटिंग का right मिलेगा. हम कौन से भी रिलीजन से हो, कौन से भी लैंग्वेज बोलते हो या कहीं से भी आते हो, we are getting voting rights. Earlier, that the age was 21 years. After Rajiv Gandhi became Prime Minister of India, he changed that to 18 years. So 18 years हो गया. पहले 21 years था, अभी 18 years है. The Indian Constitution has made the provision for right to vote for adults. So there is a provision in the Constitution. Constitution में ऐसे लिखा है या Constitution में ऐसे बताया है कि adult citizen should have right to vote. Adult means more than 18 years of age. In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. So pre-independence means before independence. Independence के पहले ऐसे बहुत सारे provisions थे, बहुत सारे laws थे जो right to vote नहीं दे रहे थे. But after independence, all such provisions were cancelled. After independence, an Indian constitution granted adult suffrage. Adult suffrage means people or adult citizen above age of 18 or some specific age. Whenever they are becoming adults, they are getting voting right. That is adult suffrage, or we are calling it as universal adult franchise or universal adult suffrage. By giving the right to vote equally to both men and women above 21 years of age. ये 21 years of age पहले था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में. The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity to political participation to younger generation in India. So जब भी 18 years कर दिया तो younger generation भी अभी political participation कर रहा है, कि पॉलिटिक्स में पार्ट ले रहा है या पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है. So they are voting for the government. So that is good. Such provision has made the India's largest democracy in the world. So because of this, India is the largest democracy. Largest democracy means इंडिया में इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है जो वोटिंग करता है, वैसे वर्ल्ड में कहीं नहीं है. सो इट इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर्ड टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन. तो इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स है वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री से कंपेयर करें तो. दिस चेंज हैज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव. ये क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हम कि इतने ज्यादा वोटर्स है, बट दैट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटी भी है वोटर्स का.
Voters are thinking for the voters are thinking about the government. If the government is not working properly, voters are not voting them, they are removing them from the office. तो दूसरा पार्टी को वोट करते हैं और उनका गवर्नमेंट बनाते हैं. लाइक वी हैव सीन in 2014 when नरेंद्र मोदी became the prime minister. So कांग्रेस का जो रूल था उसको हटा के नरेंद्र मोदी का रूल एस्टेब्लिश किया, बीजेपी का रूल एस्टेब्लिश किया. 2004 में जब भी बीजेपी का गवर्नमेंट था, लोगों को बीजेपी का गवर्नमेंट पसंद नहीं आया, तो लोगों ने बीजेपी को हरा के कांग्रेस का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था 2004 में. मनमोहन सिंह बिकम प्राइम मिनिस्टर. तो ये ऐसे चलते रहता है. अगर लोगों को काम पसंद नहीं है गवर्नमेंट का, so people are not voting for that political party, people are voting for different political party and they are making them, they are establishing government. So ऐसे हर बार चलता है. The parties represent various expectations of people and compete in political sphere. ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है लोगों के एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी पॉलिटिकल पार्टी है बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है. हमारे पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगा. तो जब भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है तो ये काम करने का कोशिश करता है. सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल. So there are various political parties that are emerging. We are having many political parties. We will study about political parties in the third chapter. Next is decentralization of power. Decentralization मतलब पावर हम लास्ट लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं. एक ही पर्सन के हाथ में या एक ही ग्रुप के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट नहीं है. पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द लास्ट लेवल. इनिशियली क्या था हमारे कंट्री में, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे. एक तो नेशनल गवर्नमेंट था या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. एक गवर्नमेंट था और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स थे. तो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर था. अभी 1992 के बाद क्या हुआ कि हमने लोकल लेवल के गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया, पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को भी पावर दे दिया. सो वी हैव डिसेंट्रलाइज द पावर, वी हैव गिवन द पावर एट द लास्ट लेवल. सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, decentralization of democracy. Decentralization of democracy is central to democratic government. Decentralization controls the misuse of power and also creates opportunity for political participation for the common people. So there is misuse of power. अगर एक पर्सन के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट है, डिक्टेटरशिप में होता है या फिर मोनार्क के हाथ में होता है, जब एक ही पर्सन के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसमें पावर का मिसयूज हो सकता है. बट एज द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मेनी पीपल, जैसे लोकसभा में जो हमारे या प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, हमारे सरपंच है या फिर मेयर है सिटी के, उनके हाथ में भी पावर है. सो देर आर मेनी पीपल हु आर होल्डिंग पावर. सो देर आर लेस चांसेस दैट पावर विल बी मिसयूज्ड. अगर एक ही आदमी के हाथ में पावर है तो देर आर मोर चांसेस दैट पावर विल बी मिसयूज्ड. सो एंड देर इज वन मोर थिंग, देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मतलब हम कॉमन सिटीजन्स भी सरपंच या कॉर्पोरेटर और मिनिस्टर्स बन सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पावर में आने का चांस मिलेगा. सो बिकॉज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लास्ट लेवल. सो मेनी पीपल आर गेटिंग चांस टू बिकम सरपंच और मेनी पीपल आर गेटिंग चांस टू बिकम मिनिस्टर्स और कॉर्पोरेटर्स, और इन मराठी वी आर कॉलिंग इट एज नगर सेवक. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट 4, 1950s में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी हमने प्रोविजन किया था कि हमारे कंट्री में आगे जाके पंचायत राज एस्टेब्लिश होगा, पंचायत का गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगा, म्यूनसिपालिटीज एस्टेब्लिश होंगे. लेकिन 1950 में ये अप्लाई नहीं कर दिया था हमने. इन 1992 दैट वाज अप्लाइड. सो वी विल सी हाउ दैट वाज अप्लाइड. One such important provision is regarding empowering the local self-government, making genuine democratic governance a reality. So local self-government होता है पंचायत, म्यूनसिपालिटी, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होता है उसे एम्पावर करना. एम्पावर कैसे करेंगे हम? उसे जब भी पावर देंगे. सो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर पावर. दे कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर विलेज, रिगार्डिंग देयर टाउन. सो वी हैव एम्पावर्ड देम. सो जितना ज़्यादा हम एम्पावर करेंगे तो देर विल बी जेन्युइन डेमोक्रेसी और जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रियलिटी. डेमोक्रेसी मीन्स पीपल आर हैविंग शेयर इन द पावर. सो एज मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग चांस टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स, देन many people will become representatives and there will be genuine democratic government. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. So independence के बाद हमने democratic decentralization कर दिया. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, लास्ट लेवल तक पावर मिला, पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, इनको पावर मिला. वन सच इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट वाज 73rd and 74th अमेंडमेंट.
73rd and 74th amendment means, amendment का meaning होता है change. Whenever there are changes made to the constitution, that is called as amendment. So जब भी constitution में 73rd और 74th बार जब भी change किया, तो उस changes में क्या था कि पंचायत को हमने compulsory बनाया. उस change के बाद 1992 में ये changes हुआ था. According to the changes, it is compulsory for the government to establish पंचायत and municipalities एंड जिला परिषद और ब्लॉक पंचायत, ये एस्टैब्लिश करना पड़ा. ये कंपलसरी कर दिया. 1950s में जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे तभी कंपलसरी नहीं था. आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट किसको होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, दैट इज अमेंडमेंट. सो पंचायत गवर्नमेंट वॉज मेड कंपलसरी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वेर ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर. सो उनको पावर भी मिला. So let us see what are the changes or what are the reason for the changes. What are the changes that were made in the panchayat? Some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process. So in panchayat and in municipalities in India 33% seats are reserved. 33% seats, अगर 100 seats है municipality में, उसमें से 33 seats women के लिए reserve होगा. So women को guarantee मिलेगा, power में आने का chance मिलेगा. अगर reservation नहीं होता तो women को chance नहीं मिलता आने का. So 33% seats are reserved for women. In India 33% seats are reserved, but in Maharashtra 50% seats are reserved for women. So because of this, participation of women in political process has increased. Some seats are kept reserved for weaker sections of society. So weaker sections like scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, so that they can get share in power. So उनको भी power में आने का chance मिलेगा. So they are getting share in political power. स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज एस्टैब्लिश्ड. सी नेशनल लेवल पे जब भी इलेक्शन होता है, लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन होता है, दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय नेशनल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सेकंड चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्शन कमीशन. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शंस कंडक्ट कराता है. ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है उस पर. लेकिन स्टेट में जब भी पंचायत का, म्यूनसिपालिटीज का इलेक्शन होगा तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया हमने. स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग इलेक्शंस. इलेक्शन कंडक्ट कराता है. किसका इलेक्शन कंडक्ट कराता है? पंचायत और म्यूनसिपालिटीज का. 11th एंड 12th शेड्यूल वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल मतलब होता है लिस्ट. ये लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया. 11th एंड 12th शेड्यूल. पहले 80 शेड्यूल था कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बना था. उसके बाद अभी 12 शेड्यूल्स हो गए. सो 11th एंड 12th शेड्यूल वेर एडेड. उस शेड्यूल के अंदर पंचायत के कुछ पावर्स के बारे में लिखा है, म्यूनसिपालिटीज के पावर के बारे में लिखा है. तो ये गारंटी मिला कि पंचायत को कुछ पावर मिलेंगे. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड करते हैं, चेंजेस करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज है, दैट लॉज आर गिविंग गारंटी टू द पीपल. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि एवरीबडी इज इक्वल इन इंडिया. सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, सो दैट इज अ गारंटी दैट ऑल द पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली इन अवर कंट्री. सो गारंटी इज इंपॉर्टेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग अस गारंटी. नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन और आरटीआई. दैट लॉ वॉज मेड इन 2005. सी राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स सिटीजन्स को राइट है गवर्नमेंट के काम के बारे में जानने का राइट है. सो पीपल आर हैविंग राइट टू आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को हम चूज करके भेजते हैं. सो गवर्नमेंट हमें आंसरेबल है. हम गवर्नमेंट को चूज करते हैं. सो वी आर आंसरेबल. वी आर क्वेश्चनिंग टू गवर्नमेंट. ये क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? हम एक आरटीआई एप्लीकेशन देंगे कि हमें इस काम के बारे में जानकारी चाहिए. सो गवर्नमेंट विल गिव दैट इंफॉर्मेशन. सी 100% इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. अगर कल हमने पूछा कि इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स किधर है या इंडिया के मिलिट्री के पास कौन से वेपन्स है, तो दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर टू द पब्लिक. सो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. बट बाकी इंफॉर्मेशन की ये रेलवे बनाने के लिए कितना पैसा लगा और रोड्स बनाने के लिए कितना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पीपल. सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं आरटीआई लॉ के वजह से. So because of this law, गवर्नमेंट के काम के ऊपर हम नजर रख सकते हैं. सो दैट इज गिविंग गुड, दैट इज अ गुड थिंग दैट वी कैन कीप एंड वॉच ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल टू द पीपल. गवर्नमेंट इज बिकमिंग रेस्पॉन्सिव. गवर्नमेंट हैज टू आंसर टू अवर क्वेश्चन. दैट इज गुड. सिटीजन्स एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशंस इन डेमोक्रेसी. सिटीजन्स इससे एम्पावर होंगे. सिटीजन्स को पावर मिलेगा कि गवर्नमेंट के काम के ऊपर नजर रख सकते हैं. So citizens empowerment is the essential conditions of democracy. It is necessary to create opportunity for citizens participation and interaction with the government. So citizens interaction is important. So citizens interact कभी करेंगे जब भी citizens government के काम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. So that is interaction of the people.
So, increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and building relation of trust between them. तो जब भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स और लोगों के बीच में जब भी बातचीत होती है तो लोगों को भी गवर्नमेंट के काम के ऊपर भरोसा होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है. सो दैट ट्रस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. अगर गवर्नमेंट को अच्छे से काम करना है, सो ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लोगों को गवर्नमेंट के काम के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट का काम करने का कुछ यूज नहीं है. सो पीपल एंड गवर्नमेंट शुड वर्क प्रॉपरली. Citizens have the right to know about functioning of the government. So citizens are having right to know about the functioning of the government. Functioning of the government means how government is working. The government of India gave the right to information to citizens of India to ensure transparency and accountability. So 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था इंडिया लेवल पे कि सभी को अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है गवर्नमेंट से. माहितीचा अधिकार पण बोलतो मराठीमध्ये. सो या सूचना का अधिकार हिंदी में बोलते हैं. सो देयर इज दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. ट्रांसपेरेंसी मीन्स गवर्नमेंट के काम के बीच में कोई बीच में पर्दा नहीं लगा है. देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी. वी कैन सी व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग. सो वी कैन आस्क द गवर्नमेंट, वी कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट लाइक हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट फॉर दिस रोड, हाउ मच मनी you will be spending for this railway. So we can ask the government and government has to answer. So there is a transparency in the work of government and there is accountability. Government is answerable to the people. Accountability मतलब गवर्नमेंट को हम गवर्नमेंट का गला पकड़ सकते हैं कि आपने ये इतना पैसा क्यों खर्चा किया, इतना ही पैसा चाहिए था. So we can ask the government or government is answerable to the people. So that is ensuring transparency and accountability. Which are the hallmarks of good governance. ये important चीज है good governance का. Good governance means government is not doing any corruption, government is taking good decisions. That is good governance. Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of the government. पहले right to information के पहले गवर्नमेंट के काम बहुत सीक्रेट होता था. अगर किसी ने इंफॉर्मेशन मांगा तो गवर्नमेंट बोलता था कि ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट है, we cannot reveal that information. But after right to information, many information or most of the information government has to share with the people. So there is no secrecy in the work of the government. Government अभी बोल नहीं सकता कि ये काम secret है, we cannot share with you. That is not the case. After year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms means change in the approach of the government, change in the work of the government. जब भी reforms मतलब change. So there is approach of the democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as right of the citizen. So now we are considering as the democratic reforms are rights of the citizen. That is important for the working of the government. Accordingly, citizens in India have got right to information, right to education, right to food security. This right have strengthened the democracy. So because of this right to education, right to information, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया हैज स्ट्रेंथन. डेमोक्रेसी और ज्यादा पावरफुल बन रहा है और ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है. सी how right based approach has changed. In decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. So हमें पहले क्या लगता था कि गवर्नमेंट माई बाप है, गवर्नमेंट लोगों का भलाई करने का काम कर रहा है. ऐसे एक उपकार की भावना होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लोगों के ऊपर उपकार कर रहा है. सो पीपल वर थिंकिंग दैट वी आर बेनिफिशरीज. गवर्नमेंट के काम के हम बेनिफिशरीज है, हमें गवर्नमेंट के काम का कुछ भला हो रहा है, फायदा मिल रहा है. लेकिन हमने अभी अप्रोच क्या चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट का कुछ भला करने का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है लोगों के लिए. गवर्नमेंट जॉब इज टू वर्क फॉर द पीपल. सो पीपल आर ट्रीटेड एज सिटीजन्स नाउ. They are not treated as just like slaves that were treated earlier. Now people are treated as citizens in India. This is good thing. See, but there are some things that we cannot give to the citizens. सभी को हम लोग ये नहीं दे सकते. जैसे सभी को हम jobs दे सकते हैं कि आज. That is not the case. We cannot give jobs to everybody. In future we can give, but now we cannot give. And we also cannot give shelter to the people. Narendra Modi government has kept a aim that till 2024 everybody in India will have a house. But I think that will not be achieved because it is not possible for the government to give money to everybody and give jobs to everybody. In future we can give, but today it is not possible for the government. Many people are unemployed. So because we cannot give everything to the people,
पहले राइट टू एजुकेशन भी नहीं दे सकते थे, एजुकेशन भी सभी को नहीं दे सकते थे हम जब इंडिपेंडेंस मिला था. बट नाउ गवर्नमेंट कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट के पास अभी पैसा है कि स्कूल स्टार्ट कर सकता है, फ्री एजुकेशन दे सकता है, फ्री फूड प्रोवाइड कर सकता है. सो दैट इज गुड. बट लार्जर जो भी इश्यूज है, जैसे घर देना, सभी को खाना देना, दैट इज नॉट पॉसिबल येट. इसे हम hope you have understood the first part. In the second part, we will study about social justice and equality. If you have understood, please share the video with your friends and please subscribe to the channel. Also tell your friends to subscribe to the channel, and thank you for watching.